आज हमें स्टार्ट करना है रिंग एंड फील्ड. बोथ आर सेम but having some different properties. Ring and field, nothing but a group, but in the group we have one binary operation, and in the ring and field we have two binary operations, that means plus and dot. And the meaning of plus and dot is usually addition and multiplication. Otherwise they give the definition of plus and dot. But initially we will assume plus means addition and dot means multiplication. Then I will explain ring and field with a table. So we can identify what is the difference between ring and the field. Field and ring. Field and ring. If we have a binary operation, if we have a mapping, that means plus algebraic structure R plus and dot. R plus and dot, where R is the set of all the elements, and plus and dot are two different binary operations. Remember that in the group we have only one binary operation, G and star, where star may be positive, maybe plus, maybe dot, maybe minus, maybe division, maybe LCM, and so on. Star having so many options. But in ring we have fixed two operations, plus and dot. Now then plus is a operation, plus is a mapping from R cross R, a Cartesian product of R to R. Same as dot is a mapping from R cross R to the same set R. Then plus is defined as, this mapping is defined as, if we pick an element A comma B from R cross R. Note that here is the Cartesian ordered pair or Cartesian element, ordered element, so that this belongs to the Cartesian product, that means R cross R, not R. And the result of this, if we pick an element AB belongs to R cross R, then the operation A plus B belongs to R. This is the mapping image, and this is element. So element from R cross R, and image belongs to capital R. तो जब भी आप प्लस हो या डॉट हो, इस टाइप की जो भी ऑपरेशन है या जो भी बाइनरी ऑपरेशन है, मैपिंग है, उसका सॉल्यूशन या उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं. और ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्या है, आर क्रॉस आर, और वो किस में मैप हो रहा है, आर में. तो जब आर क्रॉस आर है तो एलिमेंट किस टाइप का होगा, कार्टेशियन ऑर्डर्ड एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी. बट जब उस ए बी पर आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे, ये इस टाइप से ए प्लस बी, और सेकेंड वन इज ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर, तो वो इमेज कहाँ पर जाएगी या इमेज कहाँ पर बिलोंग करेगी, कैपिटल आर में. ठीक है, ये है रिंग नहीं, ये है ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो दो मैंने बताया, प्लस और डॉट. रिंग और फील्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है. रिंग में 2-3 प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो तब भी चलेगा,
ठीक है, उसके पास एक लिमिटेड प्रॉपर्टीज हैं, उसे उसको ही फॉलो करवाना है। बट जो फील्ड है, फील्ड में नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इज मोर देन द रिंग. Now this is the mapping from R cross R to R under the binary operation plus and dot. We have here we have 6 properties in ring and field. First one is closure property. Remember that in the group theory, field theory, ring theory, set theory, properties are almost same. Closure law, associative law, identity, inverse, commutative, and so on. First one is closure law. Second, associative law. Third, identity. Fourth, inverse. Fifth, commutative. And sixth one is distributive law. Distributive property. First, second, third, fourth, and fifth. These are well-known properties for us. And one new property, here we introduce a distributive property. Now, in ring and field, we have two operations, plus and dot. So we have to solve all these law for both the properties, that means plus and dot. First property, closure law. Closure law state that if we have two elements from the domain, if we pick two elements from the domain, then the operation of the element belongs to the same group, same set. If we pick two elements from a set, then the result of the two elements also belongs to the group. That means for closure property, A plus B belongs to R and A dot B belongs to R for all AB belongs to R. रिंग में क्या है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, प्लस और डॉट दोनों के साथ हमें उसको फॉलो करना है कि टू एलिमेंट्स अगर आप प्लस के साथ सॉल्व करते हैं उसको या डॉट के साथ सॉल्व करते हैं, तब उसका रिजल्ट भी उस सेम सेट में जाएगा. A प्लस बी एंड A डॉट बी. अभी फर्स्ट में रिंग के लिए डिफाइन कर रही हूँ, देन गो टू दी फील्ड, solve for the field. Closure law define A plus B belongs to R and A dot B belongs to R for all AB belongs to R. As we have plus and dot to binary operation in the algebraic structure. Now, associative law. Associative law is A plus B plus C is equal to A plus B plus B plus C is equal to A plus. ठीक है भाई, ऐसा इन लॉ को मैं बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ग्रुप थ्योरी में हम ये सब पढ़ चुके हैं. एसोसिएटिव क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, आइडेंटिटी क्या है, इनवर्स क्या है, कॉम्यूटेटिव क्या है. ठीक है, बट इसमें आप ये देख लीजिए कि अब हमारे पास दो ऑपरेशन है तो हमें उन दोनों के लिए उसको सॉल्व करना है. तो जैसे रिंग एसोसिएटिव में भी फिर प्लस के साथ हो गया, A डॉट B डॉट C is equal to A dot B dot C for all A, B, C belongs to R.
भाई सारे एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, कैपिटल आर से आ रहे हैं। प्लस के साथ हो गया या डॉट के साथ हो गया। अब आते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट पर। देखिए जब आप प्लस की बात कर रहे हैं तो प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट, if a plus b, if identity element a plus e equals to e plus a is equal to a, that means identity element preserve the identity of the element. तो जब आप प्लस ऑपरेशन के साथ हैं, प्लस ऑपरेशन के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? प्लस ऑपरेशन के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट है प्लस ऑपरेशन के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 0. That means 0 belongs to R. It is necessary for plus operation. अगर उस सेट में 0 अगर बिलोंग नहीं कर रहा है, that means we can't say that this set या this algebraic structure is a ring. क्योंकि जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर रहे हैं रिंग के लिए, तो 100% 0 उस रिंग उस सेट में बिलोंग करना चाहिए. If A belongs to R, then there exists 0 belongs to R such that किस टाइप से होगा वो? A plus 0 is equal to A and 0 plus A. A plus 0 equals to 0 plus A is equal to A. तो उसमें 0 एलिमेंट हो मस्ट, उस सेट के लिए मस्ट है वो 0 एलिमेंट. अगर उसमें 0 एलिमेंट नहीं है तो वो रिंग हम उसको कभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे. ठीक है. अब उसके बाद देखिए 0 एलिमेंट हो गया. ठीक है. तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस ऑपरेशन के लिए फिक्स हो गया है 0. अब खत्म. ये ध्यान रखिएगा आप रिंग में डॉट के लिए आइडेंटिटी ऑपरेशन हम नहीं सॉल्व करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है इनवर्स. इनवर्स ऑफ द रिंग. इनवर्स वाले केस में भी सिर्फ प्लस ऑपरेशन के साथ आपको बताना है. a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0. भाई इनवर्स ऑपरेशन क्या होता है? अगर आप उस इनवर्स एलिमेंट को उसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट. तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 0 है. तो ऑब्वियस जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इनवर्स क्या होगा? माइनस है. जब a और माइनस a ऑपरेट होंगे तब रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 0. क्योंकि ये प्लस क्या है? एडिशन है. ठीक है. तो 0 आपको माइनस, मतलब ये माइनस a भी किस में बिलोंग करेगा? इस R में. ये हो गया इनवर्स. इनवर्स के बाद आ जाइए कॉम्यूटेटिव. अब जो कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव क्या करता है? a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए. a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. तो a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए एंड a डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए. अब इसमें तो कॉम्यूटेटिव जो है दोनों के साथ है, प्लस के साथ भी है और डॉट के साथ भी है. ठीक है. लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो a डॉट बी प्लस सी, इसमें दो पार्ट हैं. a डॉट बी प्लस सी, a डॉट बी प्लस a डॉट सी. ये आएगा रिजल्ट. सेकेंड है a प्लस बी डॉट सी. दिस इज इक्वल्स टू a डॉट सी प्लस b डॉट सी. ये इसमें डिफरेंस है. ठीक है. ये दो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a डॉट बी प्लस सी और a प्लस बी डॉट सी. मतलब इसमें प्लस और डॉट दोनों आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में. ठीक है. तो अब रिंग के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों के लिए होल्ड करवानी है. प्लस डॉट, एसोसिएटिव प्लस डॉट, आइडेंटिटी ओनली फॉर प्लस, इनवर्स ओनली फॉर प्लस, कॉम्यूटेटिव प्लस एंड डॉट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्लस एंड डॉट. डिस्ट्रीब्यूटिव में दोनों एलिमेंट दोनों ऑपरेशंस आते हैं, प्लस भी और डॉट भी. ठीक है. अब इसके बाद हम जाते हैं फील्ड पर. फील्ड में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी आप प्लस के लिए भी सॉल्व करोगे और डॉट के लिए भी. क्लोजर प्रॉपर्टी फील्ड वाले केस में क्या होगा?
प्लस एंड डॉट, प्रॉपर्टीज यही है सेम, डिफाइन आपकी बिल्कुल सेम होंगी, बस उसमें थोड़े से ऑपरेशंस एक्स्ट्रा हैं। प्लस डॉट के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी प्लस और डॉट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी प्लस और डॉट के लिए होगी इसमें। ये इसमें बस डिफरेंस है रिंग और फील्ड में। इसमें क्या होता है, रिंग में कुछ ऑपरेशंस, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सिर्फ एक ही ऑपरेशंस के लिए हम उसको फॉलो करते हैं, बट फील्ड में आपको दोनों ऑपरेशंस के लिए उसको सेटिस्फाई करवानी है। तो जब आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के लिए तो फिक्स है 0, प्लस के लिए 0 होगा, बट डॉट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, डॉट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 1, a डॉट 1 इक्वल्स टू 1 डॉट a इक्वल्स टू a। इसका मतलब है कि जब हम फील्ड की बात कर रहे हैं दैट मीन्स 1 बिलोंग्स टू r। जब हम फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं या उसको सॉल्व कर रहे हैं तो फिर उस कैपिटल R में 0 और 1 ये दोनों बिलोंग करने चाहिए। रिंग के लिए 0 होगा तो चलेगा, 1 नहीं भी होगा तो हम ठीक है बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब आप फील्ड है तो फील्ड में 1 भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए और 0 भी, क्योंकि वो दोनों के लिए डिफाइन करता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, प्लस एज वेल एज डॉट। नेक्स्ट इनवर्स, inverse properties also for both the binary element, that means plus and dot. So that for inverse property r belongs to, sorry, we have a 1 by r, 1 by a belongs to r, so that a dot 1 by a is equal to 1. So that inverse for plus, inverse for the plus operation is a negative element, and inverse for dot is this type of element and belongs to capital R. तो 1 a dot 1 by a का इनवर्स क्या है 1 by a, जब वो कैंसिल होगा तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 1। तो इसमें प्लस और डॉट दोनों हैं, इसमें भी क्या प्लस और डॉट दोनों के लिए फॉलो करना है, इसमें भी प्लस डॉट इसमें भी प्लस डॉट, तो 0 के साथ एक 1 भी आ गया, और यहाँ पर माइनस ए था, माइनस ए के साथ साथ कौन सा एलिमेंट होना चाहिए 1 by a। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव भी प्लस और डॉट, ठीक है, और ये भी आपका प्लस एंड डॉट। कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव ये तो बिल्कुल एज इट इज है, उसमें भी प्लस डॉट इसमें भी प्लस डॉट। तो रिंग और फील्ड में क्या डिफरेंस है, रिंग और फील्ड में डिफरेंस है कि जो आपके प्रॉपर्टीज हैं दैट मीन्स क्लोजर, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, these 4 properties are same in ring and field with both the operations, that means plus and dot. But ring satisfy only identity and inverse property with the operation plus, and ring satisfy both the operations plus and dot. रिंग में सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टीज का चेंज होता है, कौन सा, आइडेंटिटी और इनवर्स। आइडेंटिटी इनवर्स में अगर आप इसमें क्या डिफाइन है, सिर्फ पॉजिटिव प्लस, मतलब एडिशन जो बाइनरी ऑपरेशन है सिर्फ उसके लिए डिफाइन होती है रिंग प्रॉपर्टी, सॉरी रिंग प्रॉपर्टी में जो आइडेंटिटी और इनवर्स प्रॉपर्टीज हैं रिंग में वो सिर्फ एडिशन के लिए डिफाइन होगी। बट जब आप फील्ड की बात कर रहे हैं तो फील्ड में आइडेंटिटी और इनवर्स दोनों के लिए डिफाइन होगा, प्लस और डॉट, ठीक है। तो फील्ड में तो सारे आ जाते हैं, ये 6 आपको याद करना है, 6 प्रॉपर्टीज, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कॉम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो वो पढ़ना आपको सारे हैं, प्लस के लिए भी और डॉट के लिए भी। बस ये ध्यान रखिएगा रिंग में 2 एलिमेंट छूट जाते हैं और फील्ड में वो दोनों भी डॉट के लिए भी सॉल्व होते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 0, और फील्ड डॉट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1, प्लस के लिए इनवर्स एलिमेंट माइनस ए, और डॉट के लिए इनवर्स एलिमेंट 1 by a। तो आप इसको एलिमेंट्स आप लो और उसके थ्रू आप सॉल्व करोगे, प्रॉपर्टीज यही हैं,
एलिमेंट्स भी यही आते हैं, हम हमेशा उसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी। अब वो डिफाइन करता है आपका सेट किस टाइप का है। जैसे अब अगर आप नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर में फील्ड नहीं होगा, नहीं नहीं, नेचुरल नंबर ना रिंग होगा ना फील्ड होगा, क्योंकि जब आप नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, उसमें जीरो नहीं आता है। जब उसमें जीरो नहीं है तो फिर आपके पास रिंग रिंग सॉल्व भी नहीं होगा, और अगर रिंग सॉल्व नहीं होगा तो फील्ड सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि फील्ड में 2 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो इसलिए किसी भी सेट को या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को आप फील्ड प्रूफ कर रहे हैं तो फील्ड के लिए जरूरी है कि पहले वो रिंग हो। हम उसको बोल सकते हैं रिंग इज अ अबेलियन ग्रुप विथ प्लस एंड डॉट प्रॉपर्टी। सेकेंड थिंग, रिंग में भी वो लोग इसको आइडेंटिटी और इनवर्स को थोड़ा सा उनको 2 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा करके उन्होंने उसको स्पेशल रिंग नेम दिया है कि रिंग विथ आइडेंटिटी आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर मान लीजिए रिंग में हमें पता है इतने प्रॉपर्टीज हैं, अब क्वेश्चन आता है शो दैट दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रिंग। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रिंग का मतलब है मल्टीप्लिकेशन के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मल्टीप्लिकेशन के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट मीन्स आपको ये प्रूफ करना है। अगर क्वेश्चन में आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन भी, इनवर्स तो है ही बट मल्टीप्लिकेशन में भी करना है, प्लस के साथ तो हम करते ही हैं सॉल्व, बट मल्टीप्लिकेशन अगर टर्म ऐड हो जाएगी दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी है उसके साथ, बाइनरी ऑपरेशन है उसके साथ आपको वो प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है। अगर सिर्फ रिंग आता है, रिंग का मतलब है ये 6 प्रॉपर्टीज आपको फाइंड करनी है, जिसमें से आइडेंटिटी और इनवर्स जो है सिर्फ किसके लिए होगा, प्लस ऑपरेशन के लिए। बट इन केस वो आएगा शो दैट दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रिंग। क्या लिखा हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रिंग। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रिंग में 3 टर्म आ गई, एक तो मल्टीप्लिकेटिव, एक आइडेंटिटी और एक रिंग। अब जब रिंग है तो रिंग में आपको ये 6 प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद 2 चीजें क्या है, मल्टीप्लिकेटिव और आइडेंटिटिव। आइडेंटिटी का मतलब ये और मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी आ जाएगी A.1। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा रिंग के साथ साथ, मतलब ये 6 तो आप प्रूफ करेंगी, उसके साथ एक एक्स्ट्रा, तो वो आपको लैंग्वेज उसमें देखना है कि क्या लिखा हुआ है, जो भी एक्स्ट्रा टर्म है उसमें ऐड रहेगा रिंग में। सिर्फ रिंग आता है दैट मीन्स ये 6 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है। सिर्फ फील्ड आता है तो ये 6 प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी है, बट फॉर बोथ दी ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट। तो ये अपना रिंग और फील्ड पूरा डिफाइन